Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973 till last video we have completed chapter 9. Okay, we are step by step going through all the sections. Today we are going to deal with chapter 10. This is called maintenance of public peace and public order. Okay, so we are going to deal with this chapter, public order and tranquility. It has section from 129 to 148. It is lengthy chapter, so we will divide this chapter into 4 parts: A, B, C, D. A talks about unlawful assembly, B talks about public nuisance, C talks about urgent cases of nuisance or apprehended danger, last is dispute as to immovable property. So we are going to divide this into 4 parts. Okay. Now let's look to unlawful assembly. Section 129 to 132. 129. Dispersal of assembly by use of civil force. Any executive magistrate, subsection 1 says any executive magistrate or officer in charge of police station or in the absence of such officer, in charge any police officer not below the rank of sub-inspector, may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the member of such assembly to disperse accordingly. इसका मतलब हम देख लेते हैं, what do you mean by this and what are the ingredients. Who has the power? Executive magistrate. Who has the power? Officer in charge of the police station. If he is not there, then police officer not below the rank of sub-inspector. Okay. May command any lawful assembly. मतलब unlawful assembly का definition तो हमने Indian Penal Code में पढ़ा है. Okay. They meet for certain objective, and those objective are given in chapter 8 of the Indian Penal Code. Now, if the executive magistrate or the senior police officer or the police officer not below the rank of sub-inspector comes to know there is an unlawful assembly or an assembly of people more 5 or more than that, and they are going to disturb the public peace, then they can give an order to disperse. This is what section 1 says. And when the order has been given, the assembly has to disperse as per their order. Okay. Let's look to subsection 2. If upon being so commanded, any such assembly does not disperse, मतलब section 1 में order मिल गई, या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, या तो सीनियर पीआई ने दिया पुलिस स्टेशन का, या तो ऐसे पुलिस ऑफिसर ने दिया जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है. किसको दिया? ऐसे असेंबली को जो 5 से ज़्यादा लोग जहाँ पर इकट्ठा हुए पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बार ऑर्डर दिया तो उन्होंने डिस्पर्स करना चाहिए. अगर उन्होंने डिस्पर्स नहीं किया तो क्या होगा, ये सबसेक्शन 2 कहता है. ओके. इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड it conducts itself in such a manner as to show the determination not to disperse, any executive magistrate or police officer referred to in subsection 1 may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any make person not being an officer or member of the armed force and acting as such for the purpose of dispersing such assembly, and if necessary arresting, confining the persons who form a part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law. सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि भाई एक में ऑर्डर दे दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने, पुलिस ऑफिसर ने, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, उनका डिटर्मिनेशन है कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे. तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी लोगों के मदद से उनको अरेस्ट करेगा. यहाँ पर आर्म फोर्सेस का यूज नहीं किया गया है ये सबसेक्शन में. ठीक है. उनको क्या करेगा, डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा. डिस्पर्स करने के वक्त अगर किसी ने रजिस्ट किया तो अरेस्ट करने की कोशिश करेगा और उनको जाकर एक जगह पे बंद करके रख देगा. ओके. ताकि उनको पनिशमेंट मिले एज पर द लॉ, कन्फाइनिंग देम सच पर्सन हु फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इट. ओके. तो ये हो गया डिस्पर्सल का हो गया सेक्शन. सो सेक्शन 129 1 में ऑर्डर मिली,
अनलॉफुल असेंबली को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दिया, पुलिस ऑफिसर ने दिया, उन्होंने सुना नहीं। दो सेक्शन क्या कहती है कि वो जो ऑर्डर देने वाला ऑफिसर है वो चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, उनको अरेस्ट करेगा और लोगों की मदद भी ले सकता है, आर्म फोर्सेस की मदद नहीं ले सकता। ओके, आइए हम सेक्शन 130 को देखें। यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली इफ एनी सच असेंबली कैनॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स, मतलब तादाद में लोग ज्यादा है, ओके, और पब्लिक सिक्योरिटी के रीजन से उनको डिस्पर्स करना बहुत जरूरी है। और तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है, ओके, जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर उस जगह पे मौजूद है, वो क्या कर सकता है, आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है इनको डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है, भीड़ ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई पुलिस के बस का बात नहीं है, तो आर्म फोर्सेस को बुला सकता है। ये सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एक बार अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसे कमांडिंग ग्रुप के ऑफिसर को ऑर्डर दे दी तो उन्होंने जैसा मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया है उस प्रकार से उनको अरेस्ट करना है, कन्फाइन करना है, लेकिन यह भी देखना है कि ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम लोगों को और प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाए और अरेस्ट करके पुलिस के हाथ में देना है ताकि दे विल बी पनिश्ड एज पर द लॉ। हम 130 का सबसेक्शन 3 कहते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है कि भाई आर्म फोर्सेस आ गई, आर्म फोर्सेस ने अरेस्ट करने को मदद किया पुलिस को, लेकिन आर्म फोर्सेस ने जो अपना फोर्स लगाया, ओके, उसमें कम से कम इंजरी होना चाहिए इंसान को और प्रॉपर्टी को, ये सबसेक्शन 3 कहता है। अभी हम 131 को देखते हैं। पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स द असेंबली व्हेन पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली डेंजर्ड बाय एनी सच असेंबली, और वहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी नहीं है, ओके, हु कैन कम्युनिकेट विद द कमीशन्ड और गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ऐसे टाइम पर क्या होगा, ओके, ऐसे टाइम पर जो आर्म फोर्सेस का जो कमांडर है वो एक्शन लेगा, अरेस्ट करेगा, लोगों को कन्फाइन करेगा, ओके, और असेंबली को डिस्पर्स करेगा। इन केस जब वो कर रहा है उस टाइम अगर उसको वक्त मिला कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट कर सके तो उसने तुरंत ही ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पास करना चाहिए। ये हो गया सेक्शन 131। आइए हम वो सेक्शन 132 देखते हैं। 132 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन। देखो अनलॉफुल असेंबली है, जा नहीं रही है, भीड़ बहुत है, इसमें आर्म फोर्सेस ने या पुलिस ऑफिसर ने या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऐसे कुछ ऑर्डर्स दे दिए जिसकी वजह से किसको चोट लग गई, कुछ हानि हो गई, तो ऐसे टाइम पर प्रोसिक्यूशन का क्या होगा, क्या इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा? ये सेक्शन कहता है नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट डन अंडर सेक्शन 129, 130 and 131 shall be instituted by criminal code unless and until it is sanctioned by the central government, okay, if he is an officer of central government, or state government if he is the officer of state government. Subsection 2 क्या कहता है, no executive magistrate or police officer acting under any of the said section in good faith, okay, no person doing any act in good faith in compliance of requisition section 129, 130, no officer of the armed forces acting under section 131 in good faith, no member of the armed forces doing any act in obedience to any order bound to obey, okay, इन सारों को प्रोटेक्शन है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इन दिस सेक्शन एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, naval and air force, these are the armed forces. What is the definition of officer, okay, armed forces का officer कौन है, means a commissioned officer और gazette officer, okay, जैसे armed forces में जिसका जिसका जो designation है उसके हिसाब से, even junior commissioned officer can be there. लास्ट में क्या है, member, who is a member, member is talking about in relation of the armed forces. तो हमने क्या देखा, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कैसे करना, क्योंकि ये अनलॉफुल असेंबली
पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बिगाड़ सकती है। ठीक है, 129 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने एक्शन लिया, ऑर्डर भेज दी, या पुलिस ऑफिसर जो सीनियर पीआई उसने ऑर्डर भेजा, उन्होंने माना नहीं, तो आगे चल के क्या होगा? सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर माना नहीं तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर लोगों की मदद से उनको अरेस्ट करेगा, उनको कन्फाइन करेगा और उनको कोर्ट के सामने पेश करेगा। ये हो गया सबसेक्शन 2। उसके बाद क्या है? सेक्शन 130 क्या बोलता है कि आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करना। जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये पुलिस की बस की बात नहीं है, असेंबली बहुत बड़ी है, आर्म फोर्सेस को बुलाया जा सकता है और आर्म फोर्सेस वही काम करेंगे जो पुलिस करती है। लेकिन सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कुछ ऑर्डर आर्म फोर्सेस के कमांडर को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दी है उसके हिसाब से वो लोग काम करेंगे, दे विल फॉलो द ऑर्डर। सी क्या कहता है? ऑर्डर फॉलो करने के टाइम कम से कम नुकसान होना चाहिए प्रॉपर्टी का और कम से कम लोगों को इंजरी होना चाहिए। ये सबसेक्शन 3 कहता है। 131 क्या कहता है? 131 कहता है कि अगर उधर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है और आर्म फोर्सेस के कमांडर ऑफिसर है उधर, उनके सामने अगर ये अनलॉफुल असेंबली खड़ी हो गई और पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ रही है, ट्रैंक्विलिटी बिगाड़ रही है, तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, उनको अरेस्ट करना, उनको कन्फाइन करना। और अगर उनको मौका मिले तो वो तुरंत ही क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इत्तला कर सकते हैं। 132 क्या कहता है? प्रोटेक्शन देना है। उन्होंने जो कुछ एक्शन लिया, ओके, 129 के अंडर, 130 के अंडर, 131 के अंडर, जिसने भी जो कोई एक्शन लिया, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन दाखिल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। ओके, ये हो गया सेक्शन 132। मुझे लगता है कि मैंने आपको पार्ट ए हाउ टू डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली समझा दिया, ये प्रोसीजर का भाग हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स डेफिनेटली abhilaw@comments@gmail.com पर भेजना ना भूलना। थैंक यू।